Hello, friends. My name is Dr. Sunil Bhatt. I am the Vice Chairman of Oncology and Director and Head of Pediatric Hematology Oncology at the Narayana Health City, Bangalore. It's indeed a pleasure to be talking about this very little cute girl called Samawaya Javed. She comes from Pakistan and she was diagnosed with a very rare disease called infantile osteopetrosis when she was just 5 months of age at Aga Khan University in Karachi. Now, this disease, which is osteopetrosis, is rare but is potentially life-threatening. It leads to stiffness in the bones, what we call as marble bone disease. It leads to progressive loss of vision and blindness. It leads to progressive loss of hearing and hearing loss. And it also affects the bone marrow, and eventually they die within few years of life. The only cure for this disease is bone marrow transplant. But a bone marrow transplant for this condition is extremely challenging. There are huge concerns and risks of rejection of the transplant. There's also complication in the lungs and liver, and the calcium levels become very abnormal, and those are some of the challenges which osteopetrosis transplants comes up with. There was an additional challenge with Samawaya Javed that she didn't have any full match donor in the family or in the unrelated donor registries. So hence, the transplant was not undertaken in Pakistan. The family and the doctors, they referred the patient here for the consideration of the transplant. When you evaluate the child here in the March of 2023, she already had some mild visual disturbance and she was having visual impairment. She underwent an urgent, what we call as cranial decompression, where her optic nerve, the nerve which carries the eyesight, was decompressed and the pressure was released on the nerve so that she doesn't lose her vision. After that, she went through a process of pre-transplant preparation and underwent a half-match donor transplant, what we call as haploidentical transplantation, using his father's stem cells. That was performed on 16th of May, and she had this new technique of half-match transplantation called TCR alpha beta and CD45RA depletion, which is one of the most modern and advanced ways of doing half-match transplants for patients who do not have a full match donor transplantation. Now, this girl is more than 4 months post-transplantation. She's cured of her disease. We can find 100% donor cells in her blood, and she's slowly recovering from the effects of transplant, and her bone remodeling is happening. And we now hope that she's going to be like any other normal child and is cured of this very rare but dreaded disease. She's traveling back to her hometown, and it was a pleasure to know this family from Pakistan. She's a wonderful, cute little girl and a wonderful parents who looked after her so well during the stay here in India, and also struggled a little bit, to get her here for the known reasons. So I wish them all the best, and I wish she has a very successful and healthy life ahead. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अली आगरिया, मैं कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जो है यहाँ पे इंडिया में इलाज के सिलसिले से आया था, जो क्या कहते हैं BMT के एवज में नारायण हेल्थ सिटी में। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, मेरी बेटी को ऑस्ट्रोपोसिस था। ऑस्ट्रोपोसिस के सिलसिले में मेरी बेबी बिल्कुल जैसे होता है इसी तरीके से इनको हुआ, बेबी मुझे हुई। फिर हम लोग क्या कहते हैं आगा खान, हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल है, उनसे हम लोग ने गए। आफ्टर पैदा होने के तकरीबन 2 महीने के बाद मेरी बेबी को ऐसा लगा हमें कि ये फीड नहीं कर रही है, तो फीडिंग थोड़ा इशू आया। फीडिंग इशू के बाद हम लोग ने आगा खान से रब्ता किया, तो आगा खान ने हमें कहा कि इसको हमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम लग रहा है। तो फिर हमने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हमें लग रहा है। हम लोग एकदम शॉक हो गए थे शुरू में, क्योंकि हमने इससे पहले कभी इस चीज़ के बारे में कोई ऐसा नाम सुना नहीं था, और आफ्टर 10 साल के बाद मेरा पहला बेबी था, तो उसको फिर हम लोग ज़्यादा शॉक में आ गए। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। इसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप जो है ये इसका टेस्ट करवाएं। फिर टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद वो जेनेटिक प्रॉब्लम आया, ऑस्ट्रोपोसिस। फिर ऑस्ट्रोपोसिस का हमें जो है हमने सिंगापुर से टेस्ट करवाया। सिंगापुर में टेस्ट हमारा पॉजिटिव आया। इसके बाद हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इलाज आपका
बाहर ममालिक में हो सकता है तो हो सकता है, पाकिस्तान में ये इलाज मुमकिन नहीं है। फिर हमने रब्ता किया इनसे, तो इन्होंने कहा कि ये इंडिया में होता है, आपका जर्मनी में होता है, यूएसए में होता है और सिंगापुर में होता है। फिर हमने अपने फैमिली से, लोगों से, सबसे कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद हमने, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है और हमारा माहौल और कल्चर इंडिया से मिलता जुलता है, तो इस वजह से हम लोग ने फिर वहाँ का नहीं किया और हम लोग यहाँ पे हमने कहा कि ये इंडिया से हमारा उर्दू स्पीकिंग और हिंदी और ये सब कुछ हमारा मिलता जुलता रहता है, हम लोग स्पीक है, कल्चर भी सेम है, फूड में भी कोई इतना इशू नहीं आता है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद आने के बाद हमने यहाँ पे हेल्थ, नारायण हेल्थ केयर में हम लोग ने रब्ता किया। रब्ता करने के बाद यहाँ का इंटरनेशनल डिवीज़न था, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रब्ता किया, अच्छे तरीके से हमें सारी गाइडलाइंस लाइन दी, वीज़ा की गाइडलाइंस लाइन दी, सब कुछ दिया। और इंडिया का जो है वो हमें मेडिकल वीज़ा अप्लाई करने का कहा, हम लोग ने उसको मेडिकल वीज़ा अप्लाई किया। नारायण हेल्थ हॉस्पिटल की वजह से हमें मेडिकल वीज़ा मिल गया, तीनों, मेरी वाइफ को, मुझे और मेरी बेबी को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पे करा, हमें ट्रैवलिंग में भी इतना प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ। नारायण हेल्थ हॉस्पिटल ने हमारे को हर चीज़ की गाइडेंस भी दी, ट्रैवल्स में भी हमें अच्छा करा, हमें गाड़ी मुहैया करी, एयरपोर्ट से यहाँ लाने की सहूलत दी। हमें यहाँ से अपनी जो इनकी कोऑर्डिनेशन के थ्रू में जो होटल्स थी उनको इन्होंने हमें सिस्टम बताया सारा, जो चीप से चीप रेट हो सकता था वो इन्होंने हमारे को करके और होटल हमें अवेलेबिलिटी करके मुहैया करके दी। इसके बाद हमारे को आए, हम यहाँ पे 2-3 दिन हमारे को यहाँ पे रहना हुआ। इसके बाद इन्होंने हमारे से फैमिली टर्म्स कंडीशन से अच्छे तरीके से माहौल में हमारे से बातचीत की, सारा कुछ हुआ। इसमें सुनील सर हैं यहाँ के हेड, उनसे रब्ता हुआ। नीचे जो है वो पूजा मैम है, रवि सर हैं, उनसे रब्ता हुआ। फिर उन्होंने हमें सारा गाइडलाइंस दी, सब कुछ दिया। बीएमटी में हमें यहाँ पे 7th फ्लोर है बीएमटी का, उसमें हमारे को बुलाया करा, अच्छे तरीके से हमें समझाया कि भाई ये जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये सब कुछ है, इसमें बहुत से रेयर मसले होते हैं। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से सारा गाइडलाइंस करके और सब कुछ किया। इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। शुरू में तो हम जब शुरू में 1-2 वीक था तो हमें ज़ाहिर बात है नया नया था, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि ना, हम को थोड़ी सी टेंशन थी, घबराहट थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने, इंटरनेशनल डिवीज़न वालों ने, डॉक्टर्स ने और जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने हमारे से बहुत अच्छे तरीके से ताउन किया। कोई हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया और कोई हमें टेंशन नहीं दिया। हर जगह पे हमारे साथ चलते गए, हर चीज़ हमें प्रोवाइड करते गए, तमाम चीज़ों में, लेबॉर्ट्री हो गई, टेस्ट हो गए, हर चीज़ में हर वक्त हमारे साथ एक ना एक बंदा, इनका नारायण हेल्थ हॉस्पिटल का हमारे साथ हमेशा एक ना एक बंदा हमारे साथ होता ही था। पहले हम आते थे, हमें आने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल डिवीज़न दिया, उधर कहा कि आप इधर हैं, फिर वो सब चीज़ हमारे को खुद अपने साथ सब कुछ करवाते थे। इसके बाद हम लोग का बीएमटी का किया। वैसे फर्स्ट हमारा ऑपरेशन हुआ बेबी का, क्योंकि मेरी बेबी का आई साइट का भी थोड़ा सा इशू था, तो आई साइट का इशू होने की वजह से एक ऑपरेशन ज़रूरी था। वो सर शिबू पिल्ले और डॉक्टर जो है ना, एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर आई की हॉस्पिटल, आई की एक डॉक्टर थी, उन्होंने भी हमारे से, उन्होंने सारा कोऑर्डिनेशन करके हमें फ़र्स्ट एक ऑपरेशन का कहा, जो कि हमें बहुत जल्दी करना था। क्योंकि ऑस्ट्रोपेसिस के अंदर एक मसला होता है कि आई साइट की नज़र भी जा सकती है, एयरिंग का भी मसला होता है, ब्रेन का भी इशू होता है, बहुत से इशू होते हैं और ये बहुत जल्दी करना ज़रूरी होता है। तो हमारे को, जब हम पाकिस्तान में थे तो उन्होंने हमें इन सारी चीज़ों से पहले से आगाह कर दिया था कि अगर आप आएंगे तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो हम वहाँ से पहले ही प्रिपेयरली तैयार होके आए थे। तो फिर हम यहाँ पे आए, इन्होंने हमारे को फर्स्ट कहा कि आप बीएमटी बाद में होगा, पहले आपको ये करना है कि इसका ये जो, अगर आई साइट का इशू जा सकता है या कोई और चीज़ें हों तो उसको हम ख़त्म करने के लिए पहले ये ऑपरेशन कर लें, तो ये हमारे लिए बेटर है। हम लोग आए, हम लोग ने ये ऑपरेशन करवाया। हमारा ऑपरेशन जो है वो 100% सक्सेसफुल रहा, अच्छा हमें रहा। तकरीबन ऑपरेशन के बाद 15 डेज़ तक का प्रोसेस था, जो हमने यहाँ पे आईसीयू में और यहाँ पे सब जगह पे हम रहे, अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा किया। आफ्टर 15 डेज़ फिर हमारा बीएमटी इन्होंने स्टार्ट करवाया। बीएमटी बोन मेरो ट्रांसप्लांट हमारा हुआ बेबी का। उनमें भी सारे प्रोसेस होते ये सारे हैं। इसमें आपका
तमाम चीज़ों में हमें ले जाते हैं, करते हैं, हर चीज़ में तमाम ऑप्शंस हैं इसके अंदर। पहले कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी के बाद फिर इंजेक्शंस होते हैं। इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें माँ बाप को, पेरेंट्स को, बेबी को, बच्चे को और डॉक्टर को, तमाम को फैमिली टर्म्स कंडीशन से एकदम जैसा डॉक्टर कहता है इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो ही हम सक्सेसफुल रेट पे जा सकते हैं। इसमें बेएहतियाती अगर हम करते हैं या हम कहेंगे कि नहीं ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने भी डॉक्टर के जो चीज़ डॉक्टर ने हमें कही उसके ही प्लान के मुताबिक हम चले तो हमारे को सक्सेस बहुत अच्छा रहा हमारा। जैसे डॉक्टर ने हमें कहा वैसे हम रहे। इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें केयरिंग की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। आपको जैसे डॉक्टर कहता है उसी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरियाज़ का और इसका इशू होता है, तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। इसके बाद हमारा BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम गए, तमाम चीज़ें में 41 डेज़ हम लोग ये रूम में एडमिट थे। BMT के अंदर एडमिट थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेबी। 41 डेज़ हम लोग यहाँ पे एडमिट रहे। अंदर BMT का स्टाफ था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे का नर्सिंग स्टाफ, ख़ास तौर में तमिलनाडु का स्टाफ था। स्टाफ के अंदर सब थे, पूजा मैम थी, डॉक्टर पूजा थी, आपका रवि सर थे, सुनील भट्ट थे। डेली आते थे, डेली हमें समझाते थे कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप ये नहीं करें, आप वो नहीं करें। तो हमारे को पर डे के हिसाब से हम लोग आहिस्ते बहुत अच्छे तरीके से हमारा टाइम गुजरता गया यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने यहाँ पे अपना वक्त गुजारा। 41 डेज़ हम लोग वहाँ थे। इसके बाद हम लोग ने BMT हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग को इन्होंने कहा कि आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं आउटसाइड नहीं जाना है, कहीं पे कुछ भी नहीं जाना है। जैसे BMT में हम लोग रहे थे बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, इन्होंने बिल्कुल साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, तमाम चीज़ों का ख्याल रख के, और ये सब कुछ होने के बाद आपको जो है ना वो आगे का प्रोसेस भी इसी तरीके से 90 डेज़ 100 डेज़ और मज़ीद चलना पड़ता है। जैसे हम BMT में थे इसी तरीके से उन्होंने हमें को कहा कि आप होटल में भी इसी तरीके से रहेंगे, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहन के रखना है, साफ़ सफाई का टोटल ख्याल करना है। बस इस तरीके से फिर हम लोग ने होटल में गए। होटल में भी हम इसी तरीके से रहे, ना हम ज़्यादा आउटसाइड जाते थे ना कुछ करते थे। खाने पीने का ख्याल रखते थे, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तमाम चीज़ों का, मेडिसिन्स का, हर चीज़ का जैसे डॉक्टर हमें कहता है इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो ही ये सक्सेसफुल रहता है। अगर हम आप कहेंगे कि डॉक्टर ने कहा और अगर हमने नहीं किया, पीछे से अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ये फिर हमारा इलाज में फ़र्क आ जाता है, सक्सेसफुल नहीं रहता है। अगर आप कहेंगे कि डॉक्टर नहीं देखता है और आप पीछे से करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तो देखता है जिस तरीके से है। अगर आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, प्यार है, जो भी है, तो अच्छे तरीके से अगर आप रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने बेबी के साथ केयर करें और सब कुछ करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से ये आपका इलाज सक्सेसफुल भी रहता है। डॉक्टर यहाँ पे 100% आपके साथ ताउन करते हैं और 24 आवर्स ये लोग हमारी देखभाली के लिए हैं। हमें फ़ोन नंबर दिए गए थे कि कभी भी कोई इशू हो या कोई भी चीज़ हो तो आप हमसे रब्ता करें। डॉक्टर ने भी नंबर दिए, स्टाफ लेवल ने भी नंबर दिए, नीचे इमरजेंसी के भी नंबर हमारे पास थे। 24 आवर्स बोला कभी भी कोई मसला हो तो आप हमें कॉल करें। एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रेडी पड़ी हुई थी। हमें हर चीज़ के लिए इन्होंने हर ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया हुआ था। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि हम कहें कि हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया था। नारायण हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सारा किया। होटल ने भी हमें एक 24 आवर्स के लिए पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों को कोई भी रात को अगर कोई इशू हो जाए या कोई मसला हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो हम लोग 24 आवर्स के अंदर कभी भी उनको कॉल करते हैं तो वो हमें पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद BMT है, BMT हुआ, BMT होने के बाद फिर हम होटल गए। होटल में हम लोग ने 90 डेज़ और 104 डेज़ के बाद हमारा BMT का जो ब्लड रोटेशन है वो अच्छे तरीके से हमारा सक्सेसफुल आया और सब कुछ बेहतर तरीके से हुआ और हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से हैं, खुश रहे। फैमिली तरीके से हम लोग ने यहाँ पे सारा वक्त गुजारा। इंटरनेशनल डिवीज़न है, सारे कुछ जितने भी लोग थे, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, एक फैमिली टर्म्स कंडीशन से हमने यहाँ पे 8 मंथ्स गुजारे और सक्सेसफुल रेट के साथ हमारा आज कायरिज़म जो है वो 98.6 है।
सही है। तकरीबन BMT के बाद आज 140 डेज़ हमें हो गए हैं। तो हमारा कायरिज़म जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद, आफ्टर बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद हमारा कायरिज़म नीचे आया नहीं है। हमारा कायरिज़म 98.6, 99, 98.4 इसी तरीके से रहा है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेबी बिल्कुल ठीक है और ब्लड का भी कोई मसला नहीं है, वाइट सेल का भी कोई मसला नहीं है। तमाम हर चीज़ अपनी जो जगह है वो उस जगह पे ओके हो गई है। ऑपरेशन वगैरह जो भी किया इन्होंने बोन मेरो ट्रांसप्लांट के अंदर सब कुछ सक्सेसफुल रहा। हम यहाँ पे अच्छे तरीके से रहे, कोई हमें यहाँ दिक्कत नहीं हुई। शुरू में तो हमें बहुत परेशानियाँ नज़र आ रही थी अपने मुल्क में कि हम यहाँ जाएंगे, परदेस है, ये होगा वो होगा, सो हमें थिंकिंग आ रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आए, हमने देखा, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ का स्टाफ लेवल, यहाँ के लोग, सब ने हमारे से एक फैमिली तरीके से हमारे से अच्छे तरीके से रहा। और सबसे हमारे अब यहाँ आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पे दोस्त कितने हैं, तो हम आपको कहेंगे हमारे यहाँ पे दोस्त हज़ार नहीं तो 100 तो हैं, 100 तो हैं तकरीबन। सबसे हमारी गुल मिल अच्छे तरीके से है, सब अच्छे तरीके से रहे। डॉक्टर्स भी रहे, नर्सिंग भी रहा, स्टाफ रहा, इंटरनेशनल डिवीज़न भी रहा, सब है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ज़बान का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल डिवीज़न के अंदर कोई भी ममालिक से कैसी भी ज़बान का आदमी अगर आ जाता है तो ये लोग इंटरनेशनल डिवीज़न में क्या कहते हैं, आपको कम्युनिकेशन के लिए जो है ना, इन्होंने एक स्टाफ अलग से रखा हुआ है। जो आप उनसे बात करेंगे तो वो आगे आपकी बात उसी तरीके से पहुंचा देंगे। अगर आपको नहीं आता है, अरबी है, फ़ारसी है, कोई भी आपका टॉपिक के अंदर है, तो इन्होंने ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें यहाँ पे आके डॉक्टर्स को और सब चीज़ें शुरू में हमारे को थोड़ा सा ऐसा फ़ील हुआ कि हम किस तरीके से कहेंगे, लेकिन हमें उन्होंने हर चीज़ से गाइडेंस किया हमारे को। तो कम्युनिकेशन में हमें कोई प्रॉब्लम किसी भी में नहीं हुआ, ना डॉक्टर्स में हुआ, ना हमें दूसरी जगह पे हुआ, और अच्छे तरीके से हमारा 100% सक्सेसफुल इलाज रहा। हम इनके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इनको थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने हमें, हमारी बेबी को नई ज़िंदगी दी। अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी ख्याल किया, केयर किया, हमारी बेबी को लाइफ दी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे को पाकिस्तान में तो था नहीं हमारा ये इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लेकिन ये है कि हमें एक नज़र आया इनकी वजह से, इनकी सक्सेसफुल रेट देख के हम लोग यहाँ पे आए। क्योंकि जब हमने वहाँ से देखा था तो नारायण हॉस्पिटल इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रेट में सबसे हाई पे था बोन मेरो ट्रांसप्लांट के अंदर। तो हमने फिर दूसरों से भी, बहुत से लोगों से कहा, पूछा करा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर बोन BMT के लिए आना है तो नारायण हॉस्पिटल जो है वो सबसे बेस्ट है। तो हम लोग ने फिर वो एक करके और हम लोग यहाँ पे नारायण हॉस्पिटल आए। अच्छा रहा, हमारा सफ़र भी अच्छा रहा। हम यहाँ से बहुत हैप्पी तरीके से अपने मुल्क जाएंगे, वापसी खुश होके जाएंगे, यादें लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाके और करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारी लाइफ के हमने 8 महीने यहाँ निकाले हैं वो हम अपनी सारी ज़िंदगी मिस करेंगे, और हमारे जो अच्छी यादें हैं उनमें हम लोग रखेंगे। थैंक यू सो मच।